as the chapter of the 10th class physics, reflection and refraction through a spherical surface or a plane surface. I have told you velocity of light is about 3 lakh kilometer per second, 3 to 8 meter per second, and 1,86,000 miles per second. Light takes 1 second to travel from moon to here. Moon से यहाँ आने में 1 सेकंड लगता है. Light takes 1 second to travel and takes about 8 minutes to travel from sun to earth. sun से यहाँ आने में 8 मिनट और moon से आने में 1 सेकंड लगते हैं. Velocity of light is highest. Velocity of light is maximum in comparison to velocity of other particles. As I told you that when light incident on any surface, 3 phenomena may happen. One is reflection, other is refraction, third is absorption. Reflection is 2 types. One is regular, another is irregular. Reflection is 2 types. One is regular, another is irregular. Regular reflection is those reflections which obey the law of reflection, and irregular reflection is those which do not obey the law of reflection. As I told you that light has particle nature, light travels in a straight line. Sometimes light shows the waves nature. So light behaves like particle as well as waves. So dual nature of particle, so dual nature of waves, dual nature of waves. दो तरह के नेचर होते हैं इसको. I have told you reflection, refraction, photoelectric emission. Photoelectric emission. These shows that light is a stream of particles. देखो, light is a stream of particles. Light is a stream of particles. It travels in a straight line path. But when it interacts, जब ये टकराता है, it interacts with the obstacle, OBS, CTA, CLE, obstacle, comparable to the size of the, देखो, comparable to the size of the wavelength of light. Then diffraction, diffraction may takes place. Interference of light
interference of light shows that it has wave nature. Who has? Light has. Light. ठीक है. So देखो finally निष्कर्ष पर पहुंचो. So finally light has dual nature. Light has dual nature. Sometimes it behaves like waves, sometimes it behaves like particles. ठीक है, हो गया उसकी मीनिंग नहीं होगी, नहीं भी लिख सकते उसको. ठीक है. So now, but who explains this? How? What is the behavior of the light? तब एक आया हमारा थ्योरी, that's the radiation theory, Planck's radiation theory. Planck's आगे क्लास में पढ़ोगे Planck's radiation theory, and quantum mechanics, quantum physics, quantum physics लिख लो खाली पॉइंट, क्वांटम फिजिक्स एंड रेडिएशन थ्योरी. क्वांटम फिजिक्स एंड रेडिएशन थ्योरी. सबका बुक में है. Nature of light. Okay. Okay. Now we are coming to the topic. In the first class I told you that you can see the object due to the reflection. When light incident on its surface, it reflects and it reaches to our eyes. And in this chapter we will study, if the CBSE again not reduce your syllabus, then you will have to study the human eye. Human eye like a photographic camera. The difference is that in the photographic camera, the photo is permanent, but in our retina, that behaves like a film. हमारे आंखों के पीछे रेटिना है, पर्दा है, जिसे that the image formed by the eye is not permanent. Image formed by the camera is permanent, but image formed by the eye is not permanent. It remains for 1/10 second. 1/10 second. I will tell you when we reach on that topic. The law, we should have to study this chapter, the law of reflection. Either reflection through the plane surface, either first of all reflection through the plane surface. You have a mirror like this. It is a mirror. I told you one part of the mirror is polished. If it is polished, reflecting light cannot pass it. You have a simple mirror which is at your home. This at the dressing table. You after coming to the school, after going before coming to the school, you not after भी जाके भी देखती है कि राम. Before coming to the school, you go to the mirror and you watch your face. You are either your hair is proper or not. The heart happens. Only you always keep in mind that image formed behind the mirror. How image will be formed? Image are of two types. One is real, another is virtual. When the real rays when the real rays cut each other, when real rays after reflection or refraction cut each other, then image form is real. And when it is virtually cut, then it is virtual. First of all, we should have to know the law of reflection. It is a reflecting surface. It is mm. Mm is a reflecting surface. Mm is a reflecting surface. Mm is reflecting surface. A light incident biangle, it is an incident ray.
Write the name P. Q. Q is point of incidence. Point of incidence. PQ is incident ray. Incidenting ray कर सकते हो. And it is reflected. It is QR is refracted ray. Reflected. इंसिडेंटिंग जो तो कोई दिक्कत नहीं. इंसिडेंट देखो, इंसिडेंट ही क्यों. Q dash. Here. Raise your hands and stand up. It is Q, point of incidence. PQ is incident ray. QR is reflected ray. Q dash is normal to the point of incidence. Q dash normal to the point of incidence on MN surface. At MN surface. Anybody has any problem? It is incidenting ray. Incidenting कर तो कोई दिक्कत नहीं है. It is QR reflected ray, and here this is angle. Small r, small I is equal to angle of incidence. Angle R is angle of reflection. This is the law of reflection. This is a figure. देखा? कोई दिक्कत किसी को जुड़े है मित्रों? बताओ. This is a figure. Light is coming. When you are at home, take a small mirror, and when there is no population, किसी घर नहीं हो, खिड़की नहीं हो, नहीं तो उधर तुम कहना चमकाएगा तो फिर आके तुम्हारे घर में झगड़ा करेगा. Do this experiment. When there is no population, no home, but you have the screen, just move the mirror. You can see the spot on any screen, any wall, you can see that is also moving. When we will change this angle will also change. नहीं, घर में एक सिंपल मिरर ले करके देखोगे, लेकिन किसी घर के सामने नहीं चमका देना खिड़की, ठीक है.
नहीं तो आ जाएगा लड़ने के लिए, कहेगा ऐना चमका रहा है। जिसे जब आज से 10 साल पहले ये बड़ा क्राइम था ये। आजकल तो मोबाइल से फ़ोन करता है तो क्राइम हो गया, ठीक है। आजकल किसी कोई लड़का या लड़की किसी घर के सामने चमका दिया फिर समझ लो। किसी खिड़की पे चमका दिया, देखो पुराना फिल्म में हीरो कैमरा मिरर चमका था, उसी पे चली लड़ाई। आजकल तो फ़ोन करता है, उसका क्या कहते हैं उसको, वीडियो कॉल करता है। आज वीडियो कॉल उसमें नहीं चमका। तो तुमने देखा इट इज अरेंजमेंट्स, ये अरेंजमेंट्स है, ये प्लेन सरफेस है, नॉट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तुम्हारे घर में भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। घर में जो स्पून है, स्पून ले लोगे, चम्मच अपना चेहरा सामने लाओगे, ठीक है, और उसको देखोगे क्या तुम्हारा फिगर कैसा बनता है, ठीक है। तो जिस साइड से तुम चीनी उठाती हो, यानी उसको कहेंगे हम लोग कौन से बल्गी का ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा, ये क्या होगा, कंचे होगा, और ये क्या होगा, तो बल्गी का इधर जैसे चीनी उठाते हो इधर साइड, वो क्या होगा, कंचे। देखो अपना फिगर कैसा बनता है, इरेक्ट, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, ठीक है। जब दूध ले आ रहे हो तो छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, ठीक है। हाँ, ये घर में जरा एक्सपेरिमेंट करना, फिर पलट दो उसको, रिवर्स कर दो, ठीक है। देन यू सी दैट अगेन उसका क्या नेचर होता है, व्हाट इज नेचर ऑफ दैट इमेज, इमेज का नेचर क्या है। जस्ट यू डू द एक्सपेरिमेंट एट योर होम, घर में एक्सपेरिमेंट को करो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ करना है व्हाट इज नॉट द लॉ, व्हाट इज लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ how a science students can do the experiment and how the law comes to the book, comes to the society, comes to the world का नियम कैसे बनता है। तुम कहा कि लॉ ऑफ नेचर पढ़ते हैं, फिर से लॉ ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो लॉ ऑफ नेचर कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर। न्यूटन हैज गिवन द लॉ, कैपलर हैज गिवन द लॉ, आइंस्टाइन हैज गिवन द लॉ। Listen it very carefully. Very interesting subject. There is difference between humanities and science. मानविकी और विज्ञान में अंतर है। What is the difference? Difference क्या है बच्चों? Science is based on observations. Science is based on observations. हम देखेंगे। I have not seen the Akbar. I have not seen the Babur. I have not seen the Tamerlan. But it is the history. I have also not seen the Maharana Pratap, great warrior, but these are history. Someone has written that text. We are reading this. We can't cross check this. We can check the cross check by other text. उसके टेक्स्ट को अदर टेक्स्ट से हम लोग मैच करा सकते हैं कि ये सही लिखा कि ये सही लिखा। लेकिन साइंस इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। इट इज़ नॉट द डेमोक्रेसी कि 51 आदमी बोलेंगे कि यही होगा तो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर एक आदमी बोलेगा, गैलीलियो ने कहा था कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, जबकि इससे पहले था कि अर्थ सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया, लेकिन गैलीलियो वाज करेक्ट। गैलीलियो क्या सही था, सारा दुनिया गलत था। तो यार एक पैराग्राफ आया था, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, जब IAS मेन दे रहा था मैं, तो पहला बार हिंदी क्वालिफाइंग होता है, पास करना फिर पढ़ता है। उसमें बड़ा अच्छा आया था कि मानवीय और विज्ञान में क्या अंतर है। विज्ञान प्रेक्षण पर आधारित है और विज्ञान प्रेक्षण पर आधारित है, और मानवीय की विश्वास और जो तथ्य दिए गए हैं उन पर। ग्रेट फिलोसफर एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, लिसन टू अरस्तु टोल्ड दैट, अरस्तु वाज, कौन था अरस्तु? अलेक्जेंडर का गुरुजी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर से होगा तो इंडिया में, ठीक है। तो ग्रीक यानी 326 BC के आसपास, आज से 2300 साल पहले, ही टोल्ड दैट, उसमें लिखा हुआ था हिंदी वाले संक्षेपण में, बड़ा अच्छा था, क्योंकि जिंदगी में कभी कोई कुछ मिले तो उसको हमेशा कहा कि स्त्रियों के कम दांत होते हैं। अरस्तु साहब ने बताया कि स्त्रियों के कम दांत होते हैं, 32 नहीं होता, स्त्री कम होता है। और ये बात अरस्तु ने कहा था, तो अरस्तु वाज ग्रेट फिलोसफर, कौन उसको काटेगा, जरूर कम होता होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर अरस्तु साहब विज्ञान के शिक्षक होते या विज्ञान के छात्र होते
तो क्या करते, सबसे पहले अपनी श्रीमती अरस्तु का ही दांत गिन लेते। अगर उस श्रीमती अरस्तु का दांत गिन लेते तो 1000 सालों तक ये झूठ नहीं चलता रहता कि स्त्रियों के कम दांत होते हैं क्या, 32 ही होते हैं। तो वही है कि विज्ञान क्या प्रेक्षण पर आधारित है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन में कलेक्ट डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा को रिलेट करते हैं, एक डाटा के दूसरे डाटा के साथ क्या रिलेशन है, और वो रिलेशन एक सर्टेन रिलेशन मिलता है। उसके बाद अगर वो रिलेशन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो जाता है तब वो लॉ बनता है, वैसे लॉ नहीं बनता। पहले क्या ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद डाटा कलेक्शन, डाटा जो तुमको मिला डिफरेंट डाटा, डेटा कहते हैं, डाटा नहीं कहते हैं, डेटा फिर हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, और कोरिलेशन के बाद कुछ लॉ बनता है। और लॉ बनता हो अगर वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो गया, दैट्स द लॉ, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले डिफरेंट एंगल्स पे किया होगा, जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो इस नतीजे पर पहुंचा। व्हाट कम टू द कंक्लूजन, क्या पहला क्या गया, पहला गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंटिंग रे, reflecting ray, normal to the point of incidence, normal to the surface, remains at same plane, remains at, आपको सर प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब क्या, पूरा प्लेन। अगेन देखो टीचर को बहुत कुछ बताना पड़ता है। ये प्लेन है, प्लेन मतलब ऐसा नहीं कि प्लेन है सरफेस स्मूथ है, ऐसा नहीं है, इसमें लेंथ भी है, इसमें क्या है, ब्रेथ भी है, और ये क्या है, ये सिर्फ लाइन है, ठीक है। अगर इफ क्लास किन्हीं का क्या, किनका, ठीक है, अनमोल को अभी रहने दो, ठीक है, पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर देखो इस क्वेश्चन को, वन डायमेंशनल मोशन, what is plane, प्लेन क्या है, हवाई जहाज। what is plane surface, if it has length and breadth, क्या हुआ, if it has length and breadth, लंबाई और चौड़ाई हो तो क्या होगा, प्लेन होगा वो। If a particle मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है किसान भवन से कारगिल चौक तक, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन कारगिल चौक पर इट मूव्स टुवर्ड्स पंजवारा, देन इट इज टू डायमेंशनल, एंड यू कांट इमेजिन फॉर थ्री डायमेंशनल की कल्पना नहीं कर सकते हो। थ्री डायमेंशनल के लिए तुमको हवा में उड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई, एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशनल, मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी, गहराई और ऊंचाई भी। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। प्लेन का मतलब है जिसको दो डायमेंशन है। हमें 11th तक में पढ़ना है टू डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्या हुआ, सिर्फ लंबाई। टू डायमेंशनल क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों हो। और थ्री डायमेंशनल क्या हुआ, लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों हो। ऐसा मोशन क्या हो सकता है, कैरम बोर्ड खेलते हैं, पहला चैप्टर है 11th क्लास का, 1 साल बाद पढ़ोगे कि तीनों मोशन एक ही में हो। कैरम खेलते हैं, मारे स्ट्राइकर से मारे तो वन डायमेंशनल हुआ, रिवाइंड कर गया क्या हुआ, और जो क्वाइंस है वो होल में चला गया तो क्या हो गया, या फिर किक ऑफ हो गया, उड़ गया। कई बार मारते हो जोर से, क्या करते हो, गोटी उड़ा देते हो, हाँ ठीक है। और थ्री डायमेंशनल हो गया, ठीक है। तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल लिख दो। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन ब्रैकेट में डाल के लिखो। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। कोई